Welcome you all. This is the next lecture of electronic commerce. So in the previous lecture, we discussed about the history of electronic commerce, and then we talked about the advantages and disadvantages, and then we talked about the anatomy of e-commerce site. Now we will be talking about the various applications of electronic commerce. So these are very familiar with you. The first one is email, that you are sending mails and emails to your friends, your colleagues, or to any peer groups. Then instant messaging, that Facebook Messenger app is there. You can send messages to your friends anytime. News group is a kind of discussion on a particular subject on internet, that consisting of notes, and it is redistributed through the Usenet, or those who are connected to that particular group. It's a kind of discussion group. Then online shopping and ordering. In the previous lecture, I told about the Myntra app, how you can order things and how shopping can be done online. Then online banking, you can transfer money to from one account to another account anytime. There are different type of fund transfers like NEFT or RTGS or IMPS, or you can pay money through the banking. If you want to pay for any order, then you can pay it through online banking also. Online office suits, there are number of official suits that are available online, where you can do things online. Many of them are free, like MS Word, MS PowerPoint, Excel. These are free, but there are many which you can do things online, like Microsoft Publishers. If you want to do some making some flyer or something, there are that are these types of facilities are available online. You can do things in an online way. Then second is e-ticketing. You can go to IRCTC site for booking tickets for railways, or if you want to book tickets for flight, you can choose Make My Trip, or there are a number of sites available. You can do ticketings through online. Then coming to the teleconferencing part, here you can connect with one another or different people through online medium, or with the facility of internet, and you can connect with others. You A number of people can join together, like जैसे हम बात करते हैं जूम में कोई मीटिंग होती है या गूगल मीट में होती है, तो आपके पास फैसिलिटी होती है कि आप बहुत सारे लोग एक साथ कनेक्ट हो सकते हो. डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, आपने इंडिया में ही कहीं पेमेंट करनी है तो दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक. अगर हम बात करें कि इंडिया से बाहर की पेमेंट करनी है, दैट इज इंटरनेशनल पेमेंट. दैट इज आल्सो फैसिलिटेटेड through electronic commerce. So these are the various applications of e-commerce. Then इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फ्रेमवर्क. एक जब हम ऐसा चीज को वर्क कर रहे हैं, जैसे ई कॉमर्स है, तो कोई ना कोई एक बैक एंड स्ट्रक्चर उसका जरूर होगा, with the help of which it is working. So it is a structure for supporting or some attaching something else. Particularly एक support होता है that is used for creating the foundation. It is a set of infrastructure that is required for carrying out the इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बिजनेस. मतलब एक बैकबोन, यू कैन से. फ्रेमवर्क क्या होता है? एक बैकबोन होती है किसी भी चीज की. आपने ई कॉमर्स फ्रेमवर्क, यू आर सेइंग दैट वी आर डूइंग ऑनलाइन शॉपिंग एंड वी आर डूइंग ऑनलाइन बैंकिंग और ईमेल, न्यूज ग्रुप्स और इंस्टेंट मैसेजिंग हो रही है. तो देयर इज समथिंग एट द बैक एंड which is providing support to it. So what are the five support areas? The first one is people, public policy, marketing and advertising, then support services, and business partnerships. So these are the five core support areas of electronic commerce framework. एक फ्रेमवर्क के लिए ये पांच चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमारा ई कॉमर्स रन करेगा. उसके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट करेंगे. अब ई कॉमर्स एप्लीकेशन में और भी चीजें आ गई. कुछ चीजें हमने डिस्कस की प्रीवियस स्लाइड्स में. उसमें डायरेक्ट मार्केटिंग है, आप डायरेक्टली मार्केट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो जॉब्स को. ऑनलाइन बैंकिंग वे डिस्कस. ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है दैट यू कैन नो अबाउट, लाइक डिजिटल इंडिया और
जो भी उनकी सर्विसेज हैं, कोई भी स्कीम चल रही है, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या जो भी उनकी LIC की कोई पॉलिसी है, सुकन्या समृद्धि की है, तो जो भी गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन दे रही है उसकी हमें इंफॉर्मेशन मिल जा रही है। E-गवर्नेंस, E-परचेज, कोई भी चीज ऑनलाइन परचेज करना है, B2B एक्सचेंजेस, दिस वी विल स्टडी इन नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स। B2B मीन्स बिजनेस और बिजनेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, कंज्यूमर कॉमर्स हो रहा है, मोबाइल कॉमर्स है, मोबाइल के थ्रू हम शॉपिंग कर रहे हैं, ऑक्शंस हो रहे हैं, ट्रैवल है, यू आर बुकिंग होटल्स और अपनी फ्लाइट्स बुक कर सकते हो, चाहे वो IRCTC की हो, चाहे वो बसेस हो, रोडवेज हो, या फ्लाइट्स हैं। ऑनलाइन पब्लिशिंग है, आपने कोई फ्लायर बनाना है इवेंट के लिए, अन नंबर ऑफ लाइक कंज्यूमर सर्विस है, आपको फेशियल कराना है, या आपको घर पे कुछ ऐसा काम कराना है, आपको क्लीनिंग करानी है, यू कैन कॉल द अर्बन क्लब पीपल एंड यू कैन डू सच टाइप ऑफ थिंग्स। सो ये सब चीजें जो है हमारी E-कॉमर्स एप्लीकेशंस में आया। अब इसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हमारी सपोर्ट सर्विसेज में क्या क्या आएंगी यहाँ पे। तो हमने बोला है कि 5 बेस हैं। द फर्स्ट वन इज द पीपल। पीपल कौन होंगे, कौन पीपल है जो इसमें इन्वॉल्व है? बायर्स, जो खरीद रहा है, दैट इज द कस्टमर, सेलर, द सप्लायर हु इज सेलिंग इट, इंटरमीडियरीज जो आके उसको डिलीवर कर रहे हैं, सर्विस पीपल जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, मैनेजमेंट होता है। तो ये जो पीपल हैं सारे, दे आर फॉर्मिंग द वन पार्ट ऑफ द बैकबोन, दैट इज पीपल। नाउ पब्लिक पॉलिसी, अब क्या होता है, टैक्सेस होते हैं, GST लगता है, CST लग रहा है, लीगल इश्यूज हैं कि प्राइवेसी इशू है आपका, कोई जैसे आप कार्ड से पेमेंट करते हो तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, हैकर्स हो सकते हैं, स्टील हो सकती है आपकी इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए एक सेट ऑफ रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, साइबर लॉज बनाए जाते हैं, जो भी साइबर क्राइम्स होते हैं, इफ यू डू दीज पर्टिकुलर थिंग्स, सो दीज पर्टिकुलर फ्रॉड करेंगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगा। सो दीज ऑल कम्स अंडर द पब्लिक पॉलिसी। देन हम बात करते हैं मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट, मार्केट रिसर्च करना क्यों जरूरी है? वी शुड नो आवर कंज्यूमर्स की, हमारे कंज्यूमर को क्या रिक्वायरमेंट है, एंड दैट वी विल कम टू नो थ्रू द मार्केट रिसर्च पार्ट। तो ये रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आफ्टर डूइंग द रिसर्च वी विल डू द प्रमोशंस और वी विल डेवलप द वेब कंटेंट अकॉर्डिंगली। हमें पता चल गया कि इस पर्टिकुलर जो टारगेट सेगमेंट है, इनकी ये रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इस पिथौरागढ़ एरिया में सपोज पैपे जीन्स की नहीं है, उनका कोई भी शोरूम नहीं है, या कोई भी ब्रांडेड स्टोर नहीं है, तो द पीपल ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया वांट्स टू हैव सम ब्रांडेड stores or some kind of mall, so we will do promotions of that kind of thing. So it's just an example, there can be n number of examples, means आपको कस्टमर को समझना है, अकॉर्डिंगली प्रमोशंस करने हैं और उसी अकॉर्डिंग वेब कंटेंट डेवलप करना है। देन सपोर्ट सर्विसेज, जैसे कि पेमेंट सिस्टम कैसे होगा, पेमेंट कैसे करोगे, लॉजिस्टिक्स, आपने कस्टमर ने ऑर्डर किया तो कस्टमर कैसे कैसे प्रोडक्ट को, जब जो सेलर है वो कैसे कस्टमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाएगा, तो उसके लिए कैसे मटेरियल एक्वायर करना है और अल्टीमेटली कंज्यूमर तक पहुंचाना है, किस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करना है। दीज ऑल कम्स अंडर द सपोर्ट सर्विसेज। देन हम बात करते हैं बिजनेस पार्टनरशिप्स की। तो बिजनेस पार्टनरशिप्स में हो गया कि एफिलिएट प्रोग्राम मतलब ये है कि हम किसी एक पर्टिकुलर साइट पे जाते हैं, तो हम जैसे ही उस साइट पे क्लिक करते हैं दैट इट विल बी ऑटोमेटिकली रीडायरेक्टेड टू अदर साइट। बहुत सारे एड्स अवेलेबल होते हैं, दैट इज कॉल्ड एफिलिएट प्रोग्राम। तो इस ये पार्टनरशिप्स होती हैं कि दो बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं कि इफ a customer is coming to my site, I will redirect those consumers to your sites। इस तरह से जॉइंट वेंचर होते हैं, वेंचर्स होता है, एक्सचेंज होगा, मार्केट प्लेस और कंसोर्टिया, ऑल दीज थिंग्स आर फॉर क्रिएटिंग द पार्टनरशिप्स अमंग द बिजनेस। अब हम बात करते हैं कि सपोर्ट सर्विसेज में क्या क्या आया, जो पूरा फ्रेमवर्क है उसमें क्या क्या सपोर्ट सर्विस, कॉमन बिजनेस सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर। अब सर्विसेज के लिए क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि सबसे पहले सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, जो भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन है दैट शुड नॉट लीक। स्मार्ट कार्ड्स की जरूरत है उसकी पेमेंट करने के लिए, ऑथेंटिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम्स होने चाहिए, मर्चेंट अकाउंट है, मर्चेंट अकाउंट है जो प्रॉपरली मीडिएटर का काम करते हैं, तो और बैंक से इंफॉर्मेशन लेके वो प्रोवाइड कराते हैं टू द कंज्यूमर्स। ठीक है। देन नेक्स्ट इज मैसेजिंग एंड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। मैसेजिंग कैसे होगा, कोई भी अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा है उसके रिगार्डिंग आपका प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा है, किस लेवल पे पहुंचा है,
आपने ट्रैक करना है अपना प्रोडक्ट कि आपने 6 जुलाई को किया था, तो 6 जुलाई के बाद आप चेक कर रहे हैं कि 10 जुलाई को आपका प्रोडक्ट का क्या स्टेटस है, वो कहाँ पहुंचा है. दैट विल कम्स अंडर द electronic data interchange. You will get the mail or you can ask through the chat rooms etc. देन हम बात करते हैं मल्टीमीडिया कंटेंट एंड नेटवर्क पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. कोई भी एक वेबसाइट बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट होगी. तो आपको क्या होता है, इसमें आप कई बार पिक्चर्स देख रहे होते हैं, कई बार एनिमेशंस होता है, तो मल्टीमीडिया कंटेंट विल बी देयर. तो दैट रिक्वायर्स HTML लैंग्वेज, जावा, XML, इस टाइप की आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है. देन वी टॉक अबाउट द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर. अब नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए आपको, बिना नेट के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती है. तो इट कुड बी थ्रू टेलीकॉम, केबल टीवी, वायरलेस इंटरनेट, और इट कुड बी वर्चुअल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, सेल फोन्स थ्रू विच यू कैन एक्सेस. देन इज इंटरफेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विद द डेटाबेस. आज जब इतना सब कुछ है तो एक डेटाबेस आप मेंटेन करके रखते हो पूरी चीजों का. So interfacing infrastructure, that means a set of database की. अगर हम एक साइट में देखें तो उसमें क्या होता है, पूरा डेटाबेस उनके पास मेंटेन्ड होता है कि क्या प्रोडक्ट आ गया है, क्या प्रोडक्ट सेल हो गया है, किस कैटेगरी में कितना स्टॉक में रह गया, कितना छूट गया. सो ऑल दीज विल बी द पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर of electronic commerce. So this is all about today's lecture. Thank you.